Hello students, this is your accounts teacher Ashish. Due to current scenario, we are unable to proceed your course of studies in our class because we are facing COVID-19 epidemic and a proper lockdown situation. So, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम और आप मिलकर अपनी पढ़ाई को एक नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि आप लोगों का सिलेबस अपने टाइम से कंप्लीट हो सके. For this, we are going to start online video lecture for all of you, and we are expecting that you all will take part in this initiative from our side to make it successful. Let's start with the first chapter, accounting for partnership firm, fundamental. After this lecture, you will be able to define partnership. Features of partnership, partnership deed. Now, meaning of partnership. A partnership firm is an association of two or more persons to carry on a legal business and share its profit or losses. पार्टनरशिप जो है हम कह सकते हैं ये कुछ लोगों का ग्रुप है. कुछ लोगों से मतलब है मिनिमम दो लोग, कम से कम दो लोग और अधिकतम मैक्सिमम 50% जो साथ आकर के एक लॉफुल बिजनेस को साथ करते हैं और उससे अर्न प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं. पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है वो पार्टनरशिप एक्ट में कुछ इस प्रकार दिया गया है. As per section 4 of Partnership Act 1932, partnership is the relations between persons who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all. Persons who have entered into partnership with one another are called individually partners and collectively a firm. Suppose that हम लोग मान लेते हैं कि राम और श्याम अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद दोनों एक साथ एक बिजनेस को करने के लिए तैयार होते हैं. वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर के पार्टनरशिप में एक बिजनेस करेंगे और उससे अर्न प्रॉफिट को वो आपस में एक एग्रीड रेशियो में शेयर करेंगे. अगर राम और श्याम को इंडिविजुअली रखा जाए तो वो पार्टनर्स कहलाएंगे और कलेक्टिवली उनके बारे में बात किया जाएगा तो वो फर्म कहलाएंगे. नाउ फीचर ऑफ पार्टनरशिप. Two or more persons. There must be at least two competent persons to form a partnership. Partnership Act does not specify the maximum number of persons, but the Indian Companies Act 2013 restricts the number of partners 50. Agreement. The partnership of a contractual nature. It arises from agreement and not from status. An agreement between the partner is the basis of rights and the duties of partners. The agreement may be either oral or unwritten. ये जो एग्रीमेंट है इस एग्रीमेंट में बेसिकली पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए जाते हैं. इसमें पार्टनर्स के प्रॉपर राइट्स एज वेल एज देयर ड्यूटीज भी मेंशन किए जाते हैं क्योंकि पार्टनरशिप खुद में एक कॉन्ट्रैक्ट है. लॉफुल बिजनेस. The objective of the agreement should be to carry on
a business and the business must be legal and its motive also profit earning. जैसा कि हमने पहले भी डिफिनेशन में बात कर रखा है कि पार्टनरशिप लॉफुल बिजनेस को लेके हो सकता है, तो अगर बिजनेस लॉफुल नहीं हो तो क्या होगा? तो वो पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम लॉफुल बिजनेस को लेके ही पार्टनरशिप को लेके बात करते हैं। बिजनेस का मोटिव भी प्रॉफिट अर्निंग ही होना चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है तो वो सोशल वर्क से रिलेटेड होगा। प्रॉफिट शेयरिंग, द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स must be with the objective of sharing profits amongst all the partners. Usually, partners also share losses. However, an agreement to share losses is not essential. Mutual agency. Business of the partnership must be carried on by all, the partner or by one of them acting for all. That is, there must be a mutual agency. Thus, every partner is a both an agent and the principal for himself and other partners. No separate entity. From the accounting viewpoint, partnership has a separate business entity. But from a legal point of view, partnership firm does not have a separate legal entity from its partner, because partnership firm is not a corporate institution. Its existence affected by admission of a partner, retirement or death of a partner, insolvency of a partner. पार्टनरशिप जो है वो अगर हम अकाउंटिंग व्यू ऑफ पॉइंट से बात करेंगे तो ये सेपरेट एंटिटी है, मगर अगर लीगली बात किया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ये सेपरेट एंटिटी नहीं माना जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर्स के एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ से अफेक्टेड होता है। एक कॉर्पोरेट, एक कंपनी का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कंपनीज एक्ट के रूल के हिसाब से फॉर्म होता है। कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स इस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। Now, unlimited liability. The liability of the partner is unlimited. Partners are individually and collectively liable to the creditors of the firm. It means that if the assets of the firm are insufficient to satisfy the claim of creditors of the firm, then the personal property of the partners can also be used for paying of such claim. जैसा कि हम जानते थे 11th में भी हमने पढ़ रखा है कि जो सोल ट्रेडिंग है वहां पे भी जो पार्टनर्स के लायबिलिटीज होते थे वो अनलिमिटेड होते थे। उसी प्रकार पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स के लायबिलिटीज अनलिमिटेड हैं। वहां प्रोप्राइटर्स थे, यहां पार्टनर्स हैं। अगर फर्म की लायबिलिटी, फर्म के क्रेडिटर्स, फर्म के एसेट्स बेचकर भी फुलफिल नहीं किए जा रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि पार्टनर्स अपने एसेट्स को, अपने पर्सनल एसेट्स को बेच करके उस लायबिलिटी का भुगतान करेंगे। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड is a very simple word, are an agreement between partner of a firm. This agreement defines details like the nature of firms, duties and rights of partners, their liability and the ratio in which they will divide profit or losses of the firm. Partnership deed
को हम बस इतना आसानी से कह सकते हैं कि ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स। इसमें वो सारे चीज, वो जिस चीज पे वो एग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, उनके क्या राइट्स होंगे, और साथ ही फर्म्स के नेचर्स भी इसमें मेंशन आते हैं कि फर्म्स किस तरह के बिजनेस में डील कर रही है। Although the drafting of partnership deed is not compulsory, it is always advises to do so. This help in ensuring that all terms agreed by partners exist in written form on paper. Doing so can reduce dispute between partners and govern their functioning better. ये कहीं कंपलसरी नहीं है कि ये जो एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में ही हो, ये ओरल भी हो सकता है, ये पार्टनर्स के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। बट फ्यूचर को देखते हुए हम लोग प्रिकॉशंस लेते हुए ये कोशिश करना चाहिए हम लोगों को कि जो एग्रीमेंट है, जो डीड है, वो रिटन फॉर्म में हो, ताकि फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट के लिए हम उसको एज एविडेंस यूज कर सके। और अगर ऐसा करते हैं तो हमारा बिजनेस प्रॉपर तरीके से चलता जाएगा, इसमें प्रॉब्लम्स आने के, डिस्प्यूट्स होने की संभावना रिड्यूस होते हैं, कम होते हैं। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन होता है, क्या क्या लिखा जाता है। सबसे पहले जो इसमें मेंशन होता है वो मेंशन होता है द नेम ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप जिस नाम से स्टार्ट किया गया, जिस ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप का जो नाम रखा गया है, उस नाम को हम लोग सबसे पहले मेंशन करते हैं। साथ ही उस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस भी मेंशन किया जाता है। Name and details of all partners। हम पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के फुल एड्रेस को और उनके नाम को भी मेंशन करते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हो रही है, ये भी इसमें मेंशन किया जाता है। as well as duration of the firm existence, और ये फर्म कब तक एग्जिस्ट करेगा ये भी इसमें मेंशन किया जाता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। पार्टनर्स ने कितना पैसा और किस फॉर्म में इन्वेस्ट कर रखा है, इस चीज को भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। साथ ही उनके कैपिटल के नेचर को भी मेंशन किया जाता है कि उनका कैपिटल फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएटिंग सिस्टम के बेसिस पे होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चीज हमेशा देखा जाता है कि जब पार्टनर पार्टनरशिप करते हैं और किसी बिजनेस को करते हैं तो उनके बीच जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट का रीजन होता है वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड में इस चीज का भी ख्याल रखते हैं कि उस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, किस रेशियो में वो आपस में शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल पार्टनर से इन्वेस्ट कर रखा है उस पे किसी प्रकार का इंटरेस्ट उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। The amount to be allowed to each partner for drawing। ये कह सकते हैं कि ड्राइंग, सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग डिफाइन करना चाहूंगा। 11th में भी हमने पढ़ रखा है, फिर भी मैं एक बार फिर से आपको डिफाइन कर देता हूं। ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग कहते हैं उस चीजों को जो पर्सनल एक्सपेंस को फुलफिल करने के लिए हम अपने फर्म से विड्रॉल करते हैं,
उसे ड्राइंग कहते हैं। तो इस चीज का भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है कि पार्टनर्स ये जो पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉल करेंगे वो कितना अमाउंट और किसने टाइम इंटरवल पे विड्रॉल कर सकते हैं। ना remuneration to partners means salary payable to partners, salary or commission, कुछ भी कह सकते हैं, if any, whether any salary, commissions or any other remuneration is payable to any partner for any extra work done by him for the firm, and if so, the amount of salary or commission or other remunerations payable. The procedure of admissions, of retirement or retirement of a partner. क्या प्रोसीड्यूर अपनाया जाएगा पार्टनर्स के एडमिशन रिटायरमेंट को लेकर के? The method of used for calculating of goodwill. गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे? दो तीन मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उन मेथड में से कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाएगा गुडविल के वैल्यूएशन को लेकर के, वो भी हम लोग इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ ड्यूज विद द डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर। पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ लगा रहता है। अगर पार्टनर डेथ करता है तो उनके ड्यू का सेटलमेंट, उनका फाइनल पेमेंट का सेटलमेंट हम किस प्रकार से करेंगे, उनका मोड ऑफ सेटलमेंट क्या होगा, ये भी हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। द प्रोसीड्यूर फॉलोड इन केस डिस्प्यूट अराइज बिटवीन पार्टनर्स। इस चीज को भी हम लोग मेंशन करते हैं ताकि ये कम से कम देखने को मिले कि कभी कोई डिस्प्यूट निकल के सामने आए तो ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े कि कैसे इस चीज को हम लोग को सॉल्व करना है। इसलिए इस चीज को भी इसमें हम लोग ध्यान रखते हुए इसको मेंशन करते हैं। चलो मान लेते हैं कि पार्टनर्स जो पार्टनरशिप करने के बिजनेस करने के लिए आए, साथ में आए, वो किसी कारण से पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना पाते। मीन्स इन absence of partnership deed. In case partners do not adopt a partnership deed, the following rules will apply. The partners will share profit and loss equally. Partners will not get a salary. Interest on capital will not be payable. Drawing will not be chargeable with interest. Partners will get 6% per annum interest on loans to the firm if any. तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना तो सरकार ने पार्टनरशिप एक्ट के जरिए ये नियम पास कर रखे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इस डिस्प्यूट का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ये जो डिस्प्यूट सामने आएंगे इस पार्टनरशिप डीड के बिना, तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तब हम यहाँ पे सहारा लेते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। उसमें साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वली करेंगे। ये मैटर नहीं करता है कि किसी पार्टनर का 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है और किसी पार्टनर का 10 लाख इन्वेस्टमेंट है, बस प्रॉफिट जो शेयरिंग होगा वो इक्वल होगा। किसी भी पार्टनर्स को सैलरी नहीं दिया जाएगा, उनको साथ साथ उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। वो जो ड्राइंग करेंगे बिजनेस से, उस ड्राइंग पे किसी प्रकार का इंटरेस्ट उनसे चार्ज नहीं कर सकते हैं। साथ ही अगर पार्टनर्स ने किसी प्रकार का लोन फर्म को दे रखा है तो उस लोन पे वो 6% के रेट से इंटरेस्ट लेने का अधिकारी होगा। आई थिंक
This is enough for today. Wait for my new video and revise what I taught today. इस चैप्टर के और भी वीडियोस आपको मिलेंगे। आप इन वीडियो को सीक्वेंस में ही देखें, सीक्वेंस में ही मैं आपको कोशिश करेंगे इस वीडियोस को प्रोवाइड करें। अगले सेशन में, इस चैप्टर के अगले सेशन में हम आपसे डील करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? हमने 11th में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा था एक सोल ट्रेडर्स को लेकर के, वो सारा सोल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। वही सारा चीज यहां भी फॉलो होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिफरेंसेस कहाँ आएंगे? प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर के, प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे उस चीज को लेकर के आएगा। तो वो चीज हम लोग अगले सेशन में क्लियर करेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स आपको निकल के आपके सामने आते हैं तो वो डाउट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए क्लियर कर सकते हैं। Till then, take proper care and stay safe. Thank you.